Good afternoon, my dear student. Now we are going to start our chapter number 2, that is nutrition in animals. In chapter number 1, we have discussed about nutrition in plants. Like plants, animals also need food. They need food for growth and development. They also need food to perform the basic life processes like reproduction, excretion, and respiration. Animals are generally heterotrophs. Human beings are also heterotroph and they have well developed digestive system for digestion of food. Now in this chapter we are going to read about the different parts of the digestive system. So let's start our chapter number 2, nutrition in animals. Good afternoon, my dear student. Let's start our EVS class. Now we are going to start our chapter number 2, that is migration and relations. So migration is a way to move from one place to another in order to live and work. मिग्रेशन का मतलब होता है कि जब हम एक शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाते हैं रहने के लिए या काम की तलाश में या और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जब हम एक शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाते हैं. सो द प्रोसेस और वे to move from one place to another in order to live and work, this is called migration. Next we have to know about the meaning of relation. So relation is the connection between two or more things. Okay, so एक या मतलब दो चीज़ के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं. So in this chapter we are going to read relations with our family members कि family member के साथ हमारा relation क्या है या दो family members के बीच में relations कैसे होते हैं. So now let's start our chapter. Okay, so let's start. Do you remember? Name the following. Father's father. Father's father means आपके पापा के पापा का नाम. So my dear student, you have to write the name of your grandfather. So who is your father's father? Definitely you have to write the name of your grandfather. Next you have to write the name of your father's mother. So who is your father's mother? Your grandmother. Now you have next you have to write the name of your uncle's child, means you have to write the name of your cousin. So please write and complete this exercise in your book. Now let's start migration. So what is the meaning of migration? Migration is a way to move from one place to another in order to live and work. Now you see that Pinu lived with his large family in a village. So Pinu is a name of a boy, and actually he used to live in a village with a large family. His great grandfather was the first to move to this village. वो सबसे पहले उस विलेज में कौन आया था? उसके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी सबसे पहले उस विलेज में आए थे. His family had 32 members. So see that 32 family members is living in Pinu's family. It means that Pinu's family is big and joint also. And grandparents, parents, grandparent means dada dadi, parents means mummy papa, uncles, aunts and many cousins comprised Pinu's large and joint family. So उसकी फैमिली में कौन कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, अंकल्स हैं यानी चाचा, आंट्स, चाची एंड मेनी कजन्स comprised Pinu's large and joint family. तो पीनू के लार्ज फैमिली में कौन कौन थे? ग्रैंड पेरेंट्स थे, पेरेंट्स थे, अंकल, आंट्स एंड कजन्स यानी उसके अंकल के बच्चे. सो पीनूस फैमिली कैसी थी? लार्ज और जॉइंट फैमिली थी. When the aunts got married, so here aunts means it is related to बुआ यानी कि पीनू की बुआ. तो when the aunts got married,
दे लिव विद देयर हस्बैंड इन डिफरेंट टाउन। तो जब पीनू के बुआ की शादी हो गई, उसकी जब बुआ लोगों की शादी हो गई, तो वो लोग दूसरे शहर में, दूसरे टाउन में अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए चले गए। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली, और वो लोग बहुत ही खुशी के साथ दूसरे शहर में रहते थे। दे सेलिब्रेटेड फेस्टिवल टुगेदर विथ ग्रेट फन एंड विजिटेड विलेज फेयर। देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज एग्रीकल्चर। तो शादी के बाद सभी लोग अलग अलग सेटल हो गए थे, लेकिन वो लोग हमेशा एक साथ, वेन एवर देर इज़ अ फैमिली फंक्शंस, दे ऑल come together and celebrate functions, and they have a great fun with together with all family members। तो शादी या किसी भी फेस्टिवल पे सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं पीनू की फैमिली में, और सब लोग एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। और वो लोग गांव में जो मेला लगता है, फेयर मीन्स मेला, तो वो लोग मेला भी एक साथ जाते हैं। देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज एग्रीकल्चर। तो उनके घर में पैसे का सोर्स क्या है? इट मीन्स पैसा कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर यानी खेती से आता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पीनू's family tree. So family tree is very very important. By the help of family tree we can show relations between us and our family members. So let's define what is family tree. Family tree is a diagram that shows the relationship between different members of a family over a long period of time. यानी फैमिली ट्री के हेल्प से हम अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। सी वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर इन योर बुक, दैट इज पीनू's family tree. So Pinu's family tree started with see that how it is given: great grandparents, then paternal grandparents, here maternal grandparents, then name is also given Ram Krishna and Gayatri Devi, then uncle, parent, aunt. Okay, so uncle Shyam and aunt Meera, parents Ramesh and Jyoti, यानी पीनूस के मम्मी पापा, ये पीनूस के अंकल आंट। एंड हियर आंट सुदेश एंड अंकल कमल, यानी बुआ और फूफा जी। हियर ऑल्सो आंट स्वरी एंड अंकल अजय। सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट, यू कैन ऑल्सो मेक योर फैमिली ट्री. In your EVS copy, draw neat and clean diagram of family tree. Okay, see that here, Dheeraj cousin, Mika cousin, here Pinu self, Deepa sister. So in the same way, you just go through this side also. This is maternal grandparents, Sukhlal and Kaushalya. So in the same way, you go through, read one by one, and please make neat and clean diagram of family tree. Okay students, so let's proceed the next line. Pinu's grandfather used to tell them story from epic. So आपके दादाजी जैसे आपको कहानी सुनाते हैं, वैसे ही पीनू के ग्रैंडफादर भी यानी दादाजी कहानी सुनाते थे। और कहाँ से कहानियाँ सुनाते थे? एपिक से, यानी जो बड़े बड़े जो महाकाव्य होते हैं, जैसे महाभारत इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एपिक। पीनू's मदर एंड आंट्स कुक्ड फूड टुगेदर इन अ बिग ओपन किचन। पीनू की माँ यानी पीनू's मदर और आंट्स और पीनू की आंटी मिलके एक साथ एक बहुत ही बड़े ओपन किचन में खाना बनाती हैं लोग। देयर हाउस बनाती थी। देयर हाउस वॉज क्वाइट बिग एंड एयरी। पीनू का घर कैसा है? चूँकि वो विलेज में है तो बहुत ही बड़ा है, उसकी फैमिली भी बड़ी है, तो घर भी बड़ा है और बहुत ही एयरी है, यानी ईजिली एयर पास करता है उसके घर में। इट हैड 18 रूम्स, अ वरांडा एंड अ टेरेस। सो पीनू के घर में कितने कमरे थे? 18 रूम था, वरांडा था और छत, टेरेस मीन्स छत भी था।
ही स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करता था। हिज अंकल श्याम वॉज अ बैंक एम्प्लॉय, उसके अंकल जो श्याम हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं। बैंक एम्प्लॉय मीन्स बैंक में काम करना। 2 years ago he was transferred to Delhi, thus his uncle and his family shifted to Delhi. तो पीनू के अंकल दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उनका दिल्ली में 2 साल पहले उनका दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहते थे। देयर वॉज अ वेरी लिटिल रेनफॉल दिस ईयर, तो इस साल पीनू के गांव में बहुत ही कम बारिश हुई थी। द एग्रीकल्चरल इनकम वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर सच अ लार्ज फैमिली, तो जब बारिश नहीं हुई तो इसलिए अच्छे से वो लोग खेती नहीं कर पाए। एंड यू नो दैट द सोर्स ऑफ इनकम वॉज एग्रीकल्चर इन पीनूज़ फैमिली, तो इतनी बड़ी फैमिली के लिए जब खेती अच्छे से नहीं हो पाई तो प्रॉब्लम स्टार्टेड because Pinu's family was large and the agricultural income was not sufficient, यानी अच्छी तरह से उस साल खेती नहीं हो पाई क्योंकि बारिश बहुत कम हुई थी, इसलिए पैसे की प्रॉब्लम हो गई। So Pinu's father Ramesh, his mother and grandparents migrated to Delhi in search of better source of income, इसलिए पीनू के फादर, ग्रैंडफादर और पीनू के पापा, पीनू की मम्मी और पीनू के ग्रैंड पेरेंट्स वेर दे मिग्रेटेड, वो कहाँ चले आए, वो अपना गांव छोड़ के दिल्ली में चले आए ताकि दूसरी जॉब करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे एंड दे अर्न मोर मनी। When people move from one place to another due to some reason, it is called migration. तो अभी मैंने आप लोगों को मिग्रेशन का मीनिंग बताया था कि जब हम अपना घर छोड़ के, जब हम अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं काम की तलाश में या रहने के लिए, या बहुत सारे रीज़न है जिससे हमें अपना घर छोड़ कर के शहर जाना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को हम मिग्रेशन कहते हैं। तो मिग्रेशन है क्या? मिग्रेशन इज़ अ वे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लिव एंड वर्क। द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मिग्रेंट्स। तो जो लोग अपना घर छोड़ के यानी अपनी शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जाते हैं उन्हें हम मिग्रेंट्स कहते हैं, माइग्रेंट्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम मिग्रेशन कहते हैं। तो whom we call migrants, those people who move from one place to another are called migrants. Some people leave their country to live in another country. कुछ लोग अपना देश छोड़कर के दूसरे देश में रहने के लिए चले जाते हैं। See that some people leave their country to live in another country, यानी अपना देश छोड़ करके कुछ लोग दूसरे देश में रहने के लिए चले जाते हैं। This is called emigration. तो इस प्रोसेस को हम एमिग्रेशन कहते हैं। तो एमिग्रेशन का मतलब होता है जब हम अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहने के लिए जाएं। एंड द पीपल आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। तो एमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है? एमिग्रेंट्स मीन्स अ पर्सन हु हैज़ गॉन टू लिव अनदर कंट्री, यानी वो आदमी जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहने के लिए जाता है उसे हम एमिग्रेंट्स कहते हैं। Okay, so let's start. Why do people move? अब लोग अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में क्यों जाते हैं? Just like Pinu's father moved to another city in search of a better source of income, there are some other reasons due to which people migrate. Some of them are as follows. तो जिस तरह से पीनू के फादर अपना घर छोड़ कर के शहर में गए जॉब की तलाश में, यानी अच्छे जॉब की तलाश में, ताकि वो अपने इनकम को बढ़ा सके, इंक्रीज़ कर सकें, उसी तरह से और भी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कई रीज़न से अपना घर छोड़ते हैं और शहर चले जाते हैं काम करने के लिए।
So some of them are as follows. So there are certain reasons due to which people migrate from one place to another. So let's see that. People migrate due to transferable job or due to natural calamities like flood and earthquake. तो जो लोग जॉब करते हैं, जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल है, मान लो कि कोई देवरिया में जॉब कर रहा हो, अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया तो उसको देवरिया छोड़ के उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे उसका ट्रांसफ़र हुआ है। तो जिसकी जॉब ट्रांसफरेबल होती है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनकी जॉब ट्रांसफरेबल होती है, तो उनको अपने ट्रांसफ़र के हिसाब से दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है, या फिर अगर हम अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं तभी भी हम अपना काम छोड़ करके दूसरे शहर में बेटर जॉब की तलाश में जाते हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ जॉब वी पीपल यूज टू मिग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, यानी प्राकृतिक मुसीबत की वजह से। मान लो कि फ्लड मतलब होता है बाढ़, और अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप। तो ये बाढ़ और भूकंप की वजह से हम जिस एरिया में रह रहे हैं, मान लो वहाँ पे फ्लड आ गया या कोई परेशानी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, तभी भी हमें क्या करना पड़ता है, उस जगह को छोड़ करके अपने बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। सम पीपल आर forcibly shifted during partition wars or construction of dam or roads by the government. Such force shifting is called displacement. अच्छा, ऊपर वाला जो रीज़न था ये तो हम अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी प्रॉब्लम की वजह से करते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों को फोर्सिबली यानी फोर्सफुली भी अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? ड्यूरिंग पार्टीशन यानी बंटवारा के समय, वार यानी झगड़ा, लड़ाई के वजह से छोड़ना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और रोड बाय द गवर्नमेंट, यानी जब गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करवाती है, कंस्ट्रक्शन मीन्स जब नई चीज़ों को बनवाती है, तो किन चीज़ों के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब डैम क्या है? डैम को हिंदी में हम बांध कहते हैं। तो डैम होता क्या है? डैम्स को हम रिवर पे बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। तो डैम है क्या? अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक द वाटर एंड फॉर्म अ लेक बिहाइंड इट। डैम्स के कई फ़ायदे भी होते हैं, जैसे डैम से, जब डैम हम रिवर्स पे बनाते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या किसी एरिया में फ्लड आता है तो उस पानी को हम उस रिवर में डाइवर्ट भी करते हैं। तो जब डाइवर्ट करने से क्या हो जाता है कि उस एरिया में पानी का फ्लो कम हो जाता है। तो डैम्स के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो जहाँ पे, जिस रिवर पे डैम बनता है, उस रिवर के आसपास या जो गांव होती है वहाँ जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जब डैम और रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो लोगों को अपना गांव या घर छोड़ना पड़ता है। सो सच फोर्स शिफ्टिंग इज कॉल्ड, सो इस तरीके का ज़बरदस्ती शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हेन पीपल फोर्स शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। Some people move from their native place to another city to pursue higher studies. Pursue का मतलब यहाँ पे हुआ to continue their studies, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और अपनी पढ़ाई को बेस्ट बनाने के लिए और आगे की हायर पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए भी गांव को छोड़ करके शहर आना पड़ता है। सो these are the reasons due to people migrate from one place to another place. Now you see that, do you know the construction of the Sardar Sarovar Dam on river Narmada led to displacement of thousands of people living in the region. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम, तो जब सरदार सरोवर डैम, ये है कहाँ पे आपको पता है? गुजरात में है, और गुजरात एक स्टेट है। तो गुजरात स्टेट में सरदार सरोवर डैम है, जो किस पे बना हुआ है? नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। और जब ये रिवर बना तो
हज़ारों लोगों को अपना गांव छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़ा ताकि डैम को इजीली कंस्ट्रक्ट किया जा सके. सो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज़ all for today's class. Please revise again and again, and you have to make a family tree. This is your homework. Everybody, all student, you have to make your family tree in EVS copy and send me also. Okay, so thanks for watching video and wait for the next video.